नमस्कार, मी राजेंद्र उंजे. बेधडकमध्ये तुमचं स्वागत. आता मन की बात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची सुरू झालेली आहे. ते आपण ऐकणार आहोत आणि त्यानंतर त्याच्यातल्याच मुद्द्यांविषयी आपण बोलणार आहोत. वाले सवाल हैं या जो मीटिंगों में चर्चा में आने वाले सवाल हैं, उसके बजाय जो दिल से निकलने वाली बातें हैं उसको अगर हम दोहराते हैं, उसको अगर गुनगुनाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है. और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि ये सवाल मेरे दृष्टि ज़्यादा अहम रखते हैं. आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है बराक का अर्थ क्या है. तो मैं जरा ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है. तो स्वाहिली भाषा जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है, स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, वन हु इज ब्लेस्ड. मैं समझता हूं ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है. अफ्रीकन कंट्रीज उबंतु के प्राचीन विचार का अनुकरण करती आई है. यह विचार मानवता में एकजुटता का विचार है. और वो कहते हैं आई एम बिकॉज वी आर. मैं हूं क्योंकि हम है. मैं समझता हूं सदियों का भी अंतर है, सीमाओं का भी अंतर है, उसके बावजूद भी वही भाव जो भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वही भाव दूर सुदूर अफ्रीका के जंगलों से भी उठते हैं. तो ये कितनी बड़ी विरासत हम मानव जात के पास हैं जो हमें जोड़ती है. जब हम महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो हमें हेनरी थोरू की बात याद आती है, जिनसे महात्मा गांधी डिसोबीडियंस सीखे थे. और जब हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं या ओबामा की बात करते हैं तो उनके मुंह से भी महात्मा गांधी का आदरपूर्वक उल्लेख सुनने को मिलता है. यही बातें हैं जो विश्व को जोड़ती हैं. आज बराक ओबामा हमारे साथ हैं. मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमें बताएं. बाद में जो सवाल आए हैं वो सवाल जो मेरे लिए सवाल आए हैं उसका जवाब मैं दूंगा. जो बराक के लिए सवाल आए हैं उनका जवाब बराक देंगे. तो मैं आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट बराक ओबामा to say a few words. Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and for the incredible hospitality you've shown me and my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American president together, so we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. We just came from discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners because we have so much in common. We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering individuals. We are linked together by millions of proud Indian Americans who still have family and carry on traditions from India. And I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries. People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy, and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages
and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. It gives us a chance to reaffirm what Gandhiji reminded us should be a central aim of our lives, and that is we should endeavor to see God through service of humanity, because God is in everyone. So these shared values, these convictions, are a large part of why I'm so committed to this relationship. I believe that if the United States and India join together on the world stage around these values, then not only will our peoples be better off, but I think the world will be more prosperous and more peaceful and more secure for the future. So thank you so much, Mr. Prime Minister, for giving me this opportunity to be with you here today. Barack, the first question comes from Raj from Mumbai. उनका सवाल है, अपनी बेटियों के लिए आपके स्नेह के बारे में सारी दुनिया जानती है। अपनी बेटियों को आप भारत के बारे में अपने अनुभव कैसे बताएंगे? क्या आप उनके लिए कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं? Well, first of all, they very much wanted to come. They are fascinated by India. Unfortunately, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't leave school. And in fact, Malia my older daughter had exams just recently. So they are fascinated by the culture and the history of India, in part because of my influence, I think. They are deeply moved by India's movement to independence and the role that Gandhi played in not only the nonviolent strategies here in India, but how those ended up influencing the nonviolent civil rights movement in the United States. So when I go back, I'm going to tell them that India is as magnificent as they imagined, and I am quite sure they're going to have to that they're going to insist that I bring them back the next time I visit. It may not be during my presidency, but afterwards they'll definitely want to come and visit. And I will definitely do some shopping for them, although I can't go to the stores myself, so I have to have my team do the shopping for me. And I'll get some advice from Michelle because she probably has a better sense of what they would like. बराक ने कहा कि वो बेटियों को लेकर आएंगे। मेरा आपको निमंत्रण है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी आए या राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद आए, भारत आपका और आपकी बेटियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे एक सवाल पुणे से सानिका दीवान जी ने पूछा है, महाराष्ट्र पुणे से। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शुरू किया है, क्या उसमें भी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा की मदद मांगी है क्या? सानिका, आपने अच्छा सवाल पूछा है। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। जिस प्रकार से वो अपनी 2 बेटियों का लालन पालन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी 2 बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है तो परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती हैं और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं, इतना गौरव देते हैं, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं समझता हूं ये प्रेरणा ही हमारी ताकत है। और आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटी बचाना बेटी पढ़ाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है, मानवीय जिम्मेवारी है, इसको हमने निभाना चाहिए। बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रेसिडेंट ओबामा कम्स थ्रू ईमेल। डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, ए डॉक्टर बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। आपकी पत्नी मोटापे
और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में व्यापक सामाजिक कार्य कर रही है। भारत में भी ये चुनौतियां तेजी से बढ़ रही है। क्या आप और फर्स्ट लेडी, आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के नाते समाप्त होने के बाद इन चुनौतियों को निपटने के कार्य के लिए भारत आएंगे? जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स भारत में स्वच्छता को लेकर के काम कर रहे हैं, आप भी डायबिटीज और मोटापेपन के लिए काम करेंगे क्या? Well, we very much look forward to partnering with organizations and the government and non-governmental organizations here in India around broader public health issues, including the issue of obesity. I'm very proud of the work that Michelle has done on this issue. We're seeing a worldwide epidemic of obesity, in many cases starting at a very young age. Part of it has to do with the increase in processed foods, not naturally prepared. Part of it is the lack of activity for too many children. And once they're on this path, it can lead to a lifetime of health challenges. And so this is an issue that we'd like to work on internationally, including here in India, and it is part of a broader set of issues around global health that we need to address. The Prime Minister and I have discussed, for example, how we can do a better job in dealing with issues like pandemic and making sure that we have good alert systems so that if a disease like Ebola or a deadly flu virus or polio appears, that it's detected quickly and then treated quickly so that it doesn't spread. And the public health infrastructure around the world needs to be improved. I think the Prime Minister is doing a great job in focusing on these issues here in India. And India has a lot to teach many other countries who may not be advancing as rapidly in improving this public health sector. But it has an impact on everything, because if children are sick, they can't concentrate in school, and they fall behind. It has a huge economic impact on the countries involved. And so we think that there's a lot of progress to be made here, and I'm very excited about the possibilities of continuing this work even after I leave office. मुझे एक सवाल श्रीमान अर्जुन ने पूछा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मैंने व्हाइट हाउस के बाहर एक पर्यटक के रूप में आपकी एक पुरानी फोटो देखी है, जब आप बीते दिनों सितंबर में वहां गए, तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई? ये बात सही है कि मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था। तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो हम जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है। और प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया, और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी। वे किताब काफी मेहनत करके खोज करके लाए थे, और 1894 में वो किताब प्रसिद्ध हुई थी। स्वामी विवेकानंद, जो मेरे जीवन की प्रेरणा है, वे शिकागो गए थे, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो भाषण हुए थे उसका वो कंपाइलेशन था। वो किताब खोज करके मेरे लिए लाए थे, यानी वो घटना मेरे लिए दिल को छूने वाली थी। लेकिन उतना ही नहीं, उन्होंने वो किताब के पन्ने खोल खोल करके क्या क्या उसमें लिखा है वो मुझे दिखाया। मतलब कि वो पूरी किताब देख चुके थे, और इस गर्व के साथ मुझे कहा कि मैं उस शिकागो से आता हूं जहां स्वामी विवेकानंद आए थे। ये बातें मेरे मन को बहुत छू गई थी,
और मैं जीवन भर ये मैं अपनी विरासत मानता हूं। तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। हिमानी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। Question is for you. Well, the question is, did you both imagine you would reach the positions that you've reached today? And it's interesting, Mr. Prime Minister, you talking about the first time you visited the White House and being outside that iron fence. The same is true for me. When I first went to the White House, I stood outside that same fence and looked in, and I certainly did not imagine that I would ever be visiting there, much less living there. I think both of us have been blessed with extraordinary opportunity, coming from relatively humble beginnings. And when I think about what's best in America and what's best in India, the notion that a tea seller or somebody who was born to a single mother like me could end up leading our countries is an extraordinary example of the opportunities that exist within our countries. Now, I think part of what motivates both you and I is the belief that there are millions of children out there who have the same potential, but may not have the same education, may not be getting exposed to opportunities in the same way. And so part of our job, part of government's job, is that young people who have talent and who have drive and are willing to work for it are able to succeed. And that's why emphasizing school, higher education, making sure that children are healthy, and making sure those opportunities are available to children of all backgrounds, girls and boys, people of all religious faiths and all races in the United States, is so important, because you never know who might be the next Prime Minister of India or who might be the next President of the United States. They might not always look the part right off the bat, and they might just surprise you if you give them a chance. Thank you, Barack. ये सवाल हिमानी लुधियाना पंजाब से मुझे भी पूछा है कि क्या आपने कभी इस पद पर पहुंचेंगे, इसकी कल्पना की थी? जी नहीं, कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं तो जैसे बराक ने बताया बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। लेकिन मैं बहुत लंबे अरसे से सबको ये कहता आया हूं कि कुछ भी बनने के सपने कभी मत देखो। अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के देखो। जब कुछ करते हैं तो संतोष भी मिलता है और नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। सिर्फ बनने के सपने देखते हैं और नहीं बन पाते हैं तो सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं लगता है। और इसलिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी बनने का सपना देखा नहीं था। आज भी कुछ बनने के सपने दिमाग में है ही नहीं, लेकिन कुछ करने के जरूर हैं। और भारत माता की सेवा करना, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है? वो ही करना है। मैं हिमानी का बहुत आभारी हूं। एक क्वेश्चन है बराक के लिए फ्रॉम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश इज स्टडिंग संस्कृत एट JNU. He belongs to Jhunjhunu, Rajasthan. Om Prakash is a convener of Special Center for Sanskrit Studies in JNU. Well, this is a very interesting question. His question is, the youth of the new generation is a global citizen. He's not limited by time or boundaries. In such a situation, what should be the approach by our leadership, governments, as well as societies at large? And I think this is a very important question. You know, when I look at this generation that's coming up, they're exposed to the world in ways that you and I could hardly imagine.
They have the world at their fingertips, literally. They can, using their mobile phone, get information and images from all around the world. And that's extraordinarily powerful. And what that means, I think, is that governments and leaders cannot simply try to govern or rule by a top-down strategy, but rather have to reach out to people in an inclusive way and an open way and a transparent way, and engage in a dialogue with citizens about the direction of their country. And you know, one of the great things about India and the United States is we're both open societies, and we have confidence and faith that when citizens have information and there's a vigorous debate, that over time, even though sometimes democracy is frustrating, the best decisions and the most stable societies emerge, and the most prosperous societies emerge, and new ideas are constantly being exchanged. And technology today, I think, facilitates that not just within countries, but across countries. And so I have much greater faith in India and the United States, countries that are open information societies, in being able to succeed and thrive in this new information age than closed societies that try to control the information that citizens receive. Because ultimately, that's no longer possible. Information will flow inevitably, one way or the other, and you know, we want to make sure that we're fostering a healthy debate and a good conversation between all peoples. जो सवाल बराक को पूछा गया है, ओम प्रकाश चाहते हैं कि मैं भी उस विषय में कुछ कहूं। बहुत ही अच्छा जवाब बराक ने दिया है, बड़ा इंस्पायरिंग है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक जमाने में खास करके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वे दुनिया में एक आह्वान करते थे और वो कहते थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ऐसा एक नारा कई दशक तक चलता रहा था। मैं समझता हूं आज की जो युवा की शक्ति है, आज की युवा की जो पहुंच है, इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि यूथ यूनाइट द वर्ल्ड, युवकों दुनिया को एक करो। मैं समझता हूं उनमें ये ताकत है और वे कर सकते हैं। अगला सवाल है सीए पिकाशु मुथा, ये मुंबई से पूछ रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा है, आप किस अमेरिकन नेता से इंस्पायर्ड है? वैसे जब छोटे थे तो कैनेडी की फोटो दिखा करते थे हिंदुस्तान के अखबारों में, बड़ी इंप्रेसिव थी उनकी पर्सनालिटी। लेकिन आपका सवाल है किसने इंस्पायर किया? मुझे बचपन में पढ़ने का शौक था और मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला था। 1700 साल की समय काल उनका, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन वो जीवन चरित्र इतना प्रेरक है। एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए समझदारी पूर्वक कैसे प्रयास करता है, नींद ज्यादा आती है तो नींद कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ज्यादा खाने का मन करता है तो कम खाने की तरफ जाना है तो कैसे जाना, काम करते करते अपने साथी लोग नाराज होते हैं, उनको लगता है कि देखो ये तो कुछ करते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषयों को उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है। और मैं तो हर एक को कहता हूं कि हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। आज भी मुझे वो प्रेरक देता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। वे राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीतिक विचारक थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो कूटनीतिक थे और बहुत सामान्य परिवार से आए थे। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने आज भी अमेरिका के जीवन पर अपने विचारों की छवि छोड़ी हुई है। मुझे उनका जीवन सचमुच में प्रेरक लगा है और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे, आपको अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है
तो उसमें से रास्ता दिखाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों का सहारा लिया है। तो मैं मानता हूं कि जितना मुझे प्रेरणा मिली है आपको भी मिलेगी। एक क्वेश्चन है बराक के लिए, मोनिका भाटिया। मोनिका भाटिया ने बराक से सवाल पूछा है। Well, the question is, as leaders of two major economies, what inspires you and makes you smile after a bad day at work? And that's a very good question. I say sometimes that the only problems that come to my desk are the ones that nobody else solves. If they were easy questions, then somebody else would have solved them before they reached me. So there are days when it's tough and frustrating, and that's true in foreign affairs, that's true in domestic affairs. But I tell you what inspires me, and I don't know, Mr. Prime Minister, if you share this view. Almost every day, I meet somebody who tells me, you made a difference in my life. So they'll say, the health care law that you passed saved my child who didn't have health insurance, and they were able to get an examination from a physician, and they caught an early tumor, and now he's doing fine. Or they'll say, you helped me save my home during the economic crisis. Or they'll say, I couldn't afford college, and the program you set up has allowed me to go to the university. And sometimes they're thanking you for things that you did 4 or 5 years ago. Sometimes they're thanking you for things you don't even remember, or you're not thinking about that day. But it's a reminder of what you said earlier, which is if you focus on getting things done as opposed to just occupying an office or maintaining power, then the satisfaction that you get is unmatched. And the good thing about service is that anybody can do it. If you're helping somebody else, the satisfaction that you can get from that, I think, exceeds anything else that you can do. And that's usually what makes me inspired to do more and helps get through the challenges and difficulties that we all have. Because obviously we're not the only people with bad days at work. I think everybody knows what it's like to have a bad day at work. You just have to keep on working through it. Eventually, you'll make a difference. सचमुच में बराक ने मन की बात कही है कि हम भी भले किसी पद पर क्यों ना हो, हम भी इंसान हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें प्रेरणा देती हैं। मेरा भी मन करता है मैं एक घटना मेरे अपने जीवन की बताऊं। मैं जीवन में बहुत वर्षों तक एक प्रकार से परिव्राजक रहा। लोगों के घर में मुझे खाना मिलता था, कोई जो बुलाता था वो मुझे खिलाता था। एक बार एक परिवार मुझे बार बार कहता था कि आप मेरे घर खाना खाने आइए, लेकिन मैं जाता नहीं था। इसलिए नहीं जाता था कि वो बहुत गरीब परिवार था और मुझे लगता था कि मेरा उनके यहाँ भोजन के लिए जाऊंगा, उन पर बोझ बन जाऊंगा। लेकिन उनका प्यार उतना था, उनका आग्रह इनका था कि आखिरकार मुझे झुकना पड़ा। अब मैं उनके घर भोजन के लिए गया। जब भोजन के लिए हम बैठे, बहुत छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, तो उन्होंने मुझे बाजरे की रोटी और दूध दिया। लेकिन उनका छोटा बच्चा उस दूध की ओर देख रहा था। ऐसा लगा कि जैसे इस बच्चे ने कभी दूध देखा नहीं है। तो मैंने तुरंत वो दूध का कटोरा उस बच्चे को दे दिया और उसने तुरंत पल दो पल में उसको पी लिया। उसके घर के लोग बहुत नाराज हो गए कि इसने दूध क्यों पी लिया। और मैंने अनुभव किया कि उस बच्चे ने शायद माँ के दूध के सिवा कभी भी दूध पिया नहीं होगा और मुझे अच्छा खिलाने के इरादे से वो दूध ले आए थे। इस बात ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति मेरे लिए इतनी चिंता करता है, तो मुझे अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए लगा देना चाहिए। तो यही बातें हैं जो प्रेरणा देती हैं। और बराक ने भी बहुत ही एक सामान्य मन को क्या क्या लगता है हमारे सामने बताया है। मैं बराक का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय दिया और मन की बात सुनने के लिए मैं देशवासियों का भी आभारी हूं। मैं जानता हूं कि भारत में रेडियो
हर घर पहुंचा हुआ है, हर गली पहुंचा हुआ है। और ये रेडियो मन की बात, स्पेशल मन की बात, ये आवाज हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी। मुझे एक विचार आया है, मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी और बराक के बीच आज जो बात हुई है, इसकी एक ई बुक निकाली जाए। मैं चाहता हूं कि जो मन की बात को ऑर्गेनाइज करते हैं, ई बुक निकालें। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जो श्रोताओं ने ये मन की बात सुनी है, तो आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें से जो बेस्ट 100 विचार मिलेंगे उसको भी मेरी और बराक की इस किताब के साथ हम जोड़ेंगे और एक ई बुक निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्विटर हो, फेसबुक हो, ऑनलाइन कुछ लिखना चाहते हो तो आप #यस वी कैन इस हैशटैग के साथ हमें लिखिए। एलिमिनेट पॉवर्टी, यस वी कैन। क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल, यस वी कैन। यूथ एम्पावर्ड विद एजुकेशन, यस वी कैन। जॉब्स फॉर ऑल, यस वी कैन। ग्लोबल पीस एंड प्रोग्रेस, यस वी कैन। मैं चाहता हूं कि इस टैगलाइन के साथ आप भी इस मन की बात सुनने के बाद अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी भावना पहुंचाइए। उसमें से जो बेस्ट 100 होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और मैंने और बराक ने जो बातें की हैं उसकी किताब में उसको भी जोड़ देंगे। और मैं मानता हूं सच में ये हम सबके मन की बात बन जाएगी। फिर एक बार बराक का बहुत बहुत आभार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर बराक के यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मन की बात का विशेष संस्करण आपण बघितलं आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ज्या आपल्या मनातल्या गोष्टी सांगितल्या, भारताच्या नागरिकांनी त्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारले, वेगवेगळ्या स्तरातले प्रश्न विचारले। नुकताच नरेंद्र मोदींनी जे बेटी बचाओ अभियान सुरू केलेलं होतं पंतप्रधानांनी त्याच्या विषयी देखील, त्याच्याशी निगडीत देखील प्रश्न विचारले गेले। आणि जी लोक आता हे सगळं मन की बात ऐकत होते, आमचा पुण्याचा ब्युरो चीफ अद्वैत मेहता पुण्याच्या जवळ असलेल्या भुगामधल्या काही नागरिकांशी बातचीत आपल्याला करून देणार आहे। मी एकदा आपल्या सगळ्या पाहुण्यांची ओळख करून देतो, एक छोटासा ब्रेक घेऊन आपल्याला परत यायचं आहे। अद्वैत मेहता पुण्यावरून नागरिकांसोबत ज्यांनी रेडिओवरती ही सगळी मन की बात दोन्ही नेत्यांची ऐकली ते आपल्याला त्यांच्या भावना अद्वैत आपल्याला कळवणार आहे। आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले सर असणार आहेत त्या सगळ्याचं मन की बातचं विश्लेषण करण्याकरता। आणि आपल्यासोबत औरंगाबादच्या स्टुडिओमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे हे देखील असणार आहेत। यांनीही मन की बात ऐकली आहे। ब्रेक घेऊन परत येऊ। भावक ताईबीर लोकमत। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा स्वागत। आपण आता थेट जाऊया पुण्याला। पुण्याच्या जवळ भुगावमध्ये आमचा पुण्याचा ब्युरो चीफ अद्वैत मेहता आता आहे, ज्यांनी तिथल्या लोकांसोबत मन की बात या दोन्ही नेत्यांची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची ऐकली। मला सुरुवात अद्वैत या मुद्द्यापासून करायची आहे। तुझ्या पाठीमागे काही महिला आहेत, मी बघतपासून त्या व्हिज्युअल्समध्ये आम्ही सगळेच पाहत होतो की सगळेच जण उत्सुकतेने या सगळ्या दोन्ही नेत्यांची म्हणणं ऐकून घेत होते। पण जेव्हा जो प्रश्न आला बराक ओबामा यांना, तुमच्या मुलींसाठी तुम्ही काय खरेदी करणार आहात, मुलींच्या संदर्भातला प्रश्न आला, बेटी बचाओ अभियान एकीकडे देशात सुरू आहे, ज्या महिला शांतपणे ऐकत होत्या त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण सुरुवातीला जाणून घेऊया। राजेंद्र, अत्यंत मनपूर्वक हा कार्यक्रम ऐकलेला आहे आणि आपण सुरुवात करत महिलांपासून। बराक ओबामा यांना जे प्रश्न आले आणि मोदींना, आणि असं विचारलं गेलं की तुम्ही तुमच्या मुलींसाठी काय खरेदी करणार आहात असंही विचारलं, आणि बेटी बचाओ याच्याबद्दल पण ते बोलले। काय काय वाटतं तुम्हाला, काय म्हणायचं याबद्दल? बेटी पढाओ और बेटी बचाओ हे आमच्या जे मनात होतं ना, ते मोदी साहेबांनी अत्यंत म्हणजे बोलून दाखवले। असं मनातलंच आम्हाला बोलता नाही आलं, ते मोदी साहेबांनी घोषणा केलेली आहे। त्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद आहे। महिलांना 100% महिला आता यात उतरतील या घोषणेनंतर। तुमचं काय म्हणणं आहे की जेव्हा बेटी बचाओचा मुद्दा आला, बेटी पढाओचा मुद्दा आला, शिवाय तुम्ही तुमच्या मुलींसाठी काय खरेदी करणार हा मुद्दा आला, काय वाटलं तुम्हाला? आम्हाला खरंच मोदींच्या या विचाराचा अभिमान आहे। आम्हाला सर्व महिलांना, मुलींना मोदींचे विचार, मुलींबद्दल जे विचार आहेत, महिलांविषयी जे विचार आहेत ते खूपच आवडले आहेत। बरोबर, तुला काय म्हणायचं? सर्व मुलांना म्हणजे मुलींना शिकण्याची संधी वगैरे मिळते। त्याचबरोबर मुलींना या जगामध्ये म्हणजे पुढे पाऊल ठेवायची संधी मिळत आहे। ती योजना खूप सुंदर केलेली आहे। कसं वाटलं मोदी आणि बराक ओबामा यांनी आज बोलले राष्ट्रवादी? मोदी तर बोलतात त्याच्या आधीपासून, बराक ओबामा पण बोलले आज।
ठीक आहे, ही संधी जी मिळाली, जे मुलांचे जे आमच्या मनात जे होतं ते सगळं खेडेगावाची सगळ्या जे ग्रामीण भागात सगळ्या मोदी साहेबांशी आम्हाला डायरेक्ट थेट प्रेक्षण तुम्ही ऐकता ह्याच्या आधीचे पण ऐकलेत कार्यक्रम? याच्या आधीचे खूप कार्यक्रम ऐकलेत. ही योजना मला फार मनापासून आवडली. बरोबर हे आहे. माझा अभिनंदन. स्वाभाविक आहे, बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे महिलांना आवडलेलं. काही पुरुष मंडळी आहेत, त्यांनाही विचारूयात कसा वाटला हा कार्यक्रम, कशी संकल्पना वाटते ही? मोदीजींनी हा एक सुरेख आणि सुंदर कार्यक्रम या ठिकाणी राबवलेला आहे, त्याचा आम्हाला फार आनंद होतो. प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत हा कार्यक्रम गेलेला आहे. सर्व हा कार्यक्रम अत्यंत चांगला आणि अत्यंत सुंदर असा आहे. काय आवडलं आजच्या कार्यक्रमात? अनेक उदाहरणं दिली मोदींनी. स्वतः त्यांची व्हाईट हाऊसची ट्रिप असेल, त्यांना कशाने प्रेरणा दिली, किंवा ओबामाने पण सांगितलं. काय भावलं तुला एक तरुण म्हणून? नरेंद्र मोदी असेल किंवा बराक ओबामा असेल, या जगातील अत्यंत प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक आहेत. आज मोदींचा संघर्ष पाहिला तर आज एक चहावाला, एक साधा इसम या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो हे त्यांनी आज मागच्या काळात दाखवून दिलंय. बराक ओबामांच्या बाबतीतही तसंच म्हणता येईल. आणि मोदींची जी धोरणं आहेत, जे परराष्ट्र धोरण आहे, आज बराक ओबामा सारख्या राष्ट्राध्यक्षाला त्यांनी आमंत्रित करून आपण आज अमेरिकेशी आपले संबंध इतके घनिष्ठ झालेत. यामुळं आपलं अमेरिकेशी संबंध घनिष्ठ झाल्यामुळे आपलं एक जगात आपल्या भारत देशाचं एक वेगळं असं स्थान निर्माण होण्यास या गोष्टीतून मदत होणार आहे. आणि मला सांगा, त्यांनी सांगितलेलं आहे की येस वी कॅन, हो हे शक्य आहे. तुम्ही पण काही आयडिया द्या, त्याचा आम्ही समावेश करू, 100 बेस्ट आयडिया, किंवा त्याचं पुस्तक काढू. काय सांगाल तुम्ही, काय करायला पाहिजे तुमच्या मनात आहे? करायला पाहिजे सगळं जे आहे. कुठल्या कुठल्या योजना तुमच्या मनात आहेत ज्या तुम्हाला पोहोचवायच्या त्यांच्यापर्यंत? आमच्याकडे योजना ह्या स्वच्छतेच्या माध्यमातून आम्ही सुरुवात केलेलीच आहे. आणि तुम्ही आधीच केली स्वच्छ भारत. स्वच्छता केली, आणि मोदी साहेबांनी जी नंतर परत जो स्वच्छतेचा नारा दिला तेव्हापासनं आणखीन त्यामध्ये भर पडली. आणि तेव्हापासून आम्ही स्वच्छतेचा, आमचा गाव आणि सगळा परिसर आम्ही सगळा स्वच्छ ठेवतोय. बरोबर आहे. या गावाचं वैशिष्ट्य आहे, राजेंद्र यांना वेगवेगळ्या 10 विभागांना यांना ISO प्राप्त आहे. परंतु एकूणच जर आपण बघितलं तर तरुण असतील, शाळेतली मुलं असतील, महिला असतील, हे सगळे जर मनपूर्वक ऐकतात, रेडिओवरती ऐकतात. याच्या आधीचे पण त्यांनी ऑक्टोबरपासून सुरू केलेला कार्यक्रम आहे, तो त्यांनी ऐकलेला आहे. आज सुद्धा त्यांना बरं वाटलेलं आहे की एक अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष येतो, तो बोलतो, नरेंद्र मोदी बोलतात, खूप साधं बोललात. महिलांच्या प्रतिक्रिया आहेत की ते आमच्या मनातलं बोलले. म्हणजे मन की बात खऱ्या अर्थाने लोकांना प्रेरणा मिळते आहे. आणि त्यांना असं वाटतंय की येस वी कॅन, जसं मोदींनी सांगितलं की हो हे शक्य आहे, तो विश्वास किंवा हे सगळं लोक म्हणतायत की पंतप्रधान येऊन अशा पद्धतीने बोलतायत, हे चांगलं आहे. गावागावामध्ये हे पोचतंय आणि आम्हाला भावतंय. अगदी खरं की गावागावात पोहोचतंय, लोकांना त्या सगळ्या गोष्टी भावतायत. आपण अजूनही काही लोकांच्या अद्वैत प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. आपल्यासोबत निळू दामले सर आहेत आणि संजीव उन्हाळे सर पण देखील आहेत. निळू दामले सर, पहिली प्रतिक्रिया मन की बात. पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे मोदींनी जे जे कार्यक्रम मांडले, म्हणजे बेटी बचाव किंवा गरिबी किंवा ते असं म्हणाले हेल्थ केअर, चांगलं आहे, हे व्हायला पाहिजे. पण हे ते गेले 8 महिने सांगतायत. एप्रिलमध्ये त्यांची प्रचार मोहीम सुरू झाली त्या दिवसापासून हे सगळं ते सांगतायत. म्हणजे हे नवीन नाही त्या अर्थाने, बरोबर. आता अपेक्षा अशी आहे की 8-10 महिने झाल्यानंतर ह्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत काय झालं आहे हे आता लोकांना पाहायचं आहे. आणि घोषणांच्या बाबतीत तुम्हाला सांगतो, मला विचाराल तर त्याचा कंटाळा येतो. फार घोषणा होतात. मला एक जुनी आठवण आहे, इंदिरा गांधींनी ज्यावेळी गरिबी हटावची घोषणा केली त्यावेळी आम्हा सर्व लोकांची प्रतिक्रिया अशी होती की गरिबी काय आम्ही चिकटून धरली आहे काय? आम्ही काय गरिबीला मिठी मारून बसलोय, तुम्ही हटाव म्हणून सांगता येते? गरिबी आम्हाला सुद्धा नको आहे. लोक असं म्हणत होतो की तुम्ही गरिबी घालवून दाखवा, तुम्ही समाजातली विषमता कमी करून दाखवा. तो मुलींना शिक्षण देऊ नये असं कोणाला वाटतं बरं देशामध्ये? कोणाला चांगली हेअरस्टाईल मिळू नये असं देशामध्ये वाटणार एकतरी माणूस तुम्हाला सापडणार आहे का? किंवा ज्या त्याने एक उदाहरण दिलं भावना प्रधान होऊन की त्या मुलाला दूध मिळत नव्हतं वगैरे, असं देशातल्या कोणत्या माणसाला वाटतं की कोणाला दूध मिळू नये म्हणून? हे सर्वांना वाटतं. ह्या सगळ्या चांगल्या इच्छा आहेत, परंतु ह्या सगळ्या चांगल्या इच्छा असताना वारंवार त्या इच्छा तुम्ही सांगत राहणं, यापेक्षा सुद्धा लोकांच्या, माझी तरी अपेक्षा आहे की तुम्ही आम्हाला हे कसं करता ते दाखवा बाबा. 10 महिने झाले, एक कार्यक्रम आला पाहिजे, तो पुढे गेला पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला हे घडत असताना असर नावाच्या संस्थेने केलेली जी पाहणी आली, त्या पाहणीमध्ये महाराष्ट्र आणि देशातल्या शिक्षणाची काय अवस्था आहे आपल्यासमोर आलं. तेव्हा मला असं वाटतं की मोदींनी सांगितलेले विचार चांगले, त्यात काही वादच नाही, आणि लोकांनी आपल्यापर्यंत केलं पाहिजे याच्यामध्ये वादच नाही. अगदी खरं आहे. पण हे सतत बोलून कंटाळा आला आता मला. अगदी बरोबर. त्यातल्या जे काही अजून मुद्दे होते दामले सर, आपण तेही घेणार आहोत. ब्रेक घ्यायच्या आधी मला संजय उन्हाळे सरांना विचारायचं आहे. संजय उन्हाळे सर, जसं आता निळू दामले सर म्हणाले की त्या गोष्टी येण्यापेक्षा
मोदीही म्हणाले की स्वप्न बघण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीवरती अधिक भर दिला पाहिजे. पंतप्रधानांनी देखील आता मन की बातमध्ये या गोष्टीचा उल्लेख केला. या कृतीशीलतेसाठी आता काय करणं गरजेचं आहे? मुळामध्ये असं आहे की या दोघंही जे नेते आहेत हे एक उत्कृष्ट वक्ते आहेत. ते एका प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेले आहेत आणि मुख्य म्हणजे याच्यातली महत्त्वाची गोष्ट शिकण्यासारखी अशी आहे की आता खरं कृतीची वेळ आहे आणि या वारंवार ज्या घोषणा होतात या घोषणाचा लोकांना हळूहळू कंटाळा येईल. या कार्यक्रमातून बोध घेण्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की बराक ओबामा हे किती फ्लेक्झिबल आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे एकेकाळी मोदींना अमेरिकेमध्ये प्रवेश नव्हता. या दोघांच्या विचारांच्या मूलभूत विचारामध्ये मतभिन्नता आहे, पण ही मतभिन्नता असताना सुद्धा अगदी बरोबर विवेकानंदांचा रेफरन्स, विवेकानंदांचं पुस्तक देणं, त्याप्रमाणे त्या मोदींना प्रभावित करणं, हे ज्या पद्धतीने त्यांनी केलं, मला असं वाटतं की अमेरिकेतली लोक हे जास्त व्यवहारवादी आहेत आणि म्हणून मन की बात हे खरं म्हणजे नरेंद्र मोदी मनापासून बोलतात, ही गोष्ट मानलीच पाहिजे. परंतु मला असं वाटतं की बराक ओबामा यांनी या जे ठिकाणी विवेचन केलं त्यांना एक मोठी संधी या ऑल इंडिया रेडिओच्या माध्यमातून मिळाली. म्हणजे ते नेहमी करता भारताकडे एक मिडल क्लास आणि यूथचा एक मार्केट म्हणून पाहतात, त्याच्या पलीकडेही खेड्यापाड्यातल्या लोकांना मला वाटतं ॲड्रेस करण्याची संधी या निमित्ताने मिळाली. आणि या निमित्तानं हे या कार्यक्रमाचं मोठेपण आहे की दोन मोठ्या व्यक्तींचे विचार लोकांच्या पर्यंत पोहोचले, पण विचारांची भिन्नता सुद्धा मोदींनी फार चपखलपणे दाखवली. म्हणजे त्यांनी बोलता बोलता असं सांगितलं की कम्युनिस्ट आणि वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड युनाईट असा संदेश होता आणि आता मोदींनी नवीन संदेश दिला की यूथ युनाईट द वर्ल्ड. म्हणजे मला असं वाटतं की हा विचारातला जो बदल आहे हा बदल देखील बारकाईने मोदींनी आपल्या म्हणण्यामध्ये मांडला की तो विचारातला बदल किती घडत गेलेला आहे आणि आपला हा नवीन विचार कसा आहे हे देखील मला वाटतं मोदींनी बारकाईने सांगण्याचा प्रचार केला. आणि एवढंच नाही तर बराक ओबामा यांच्या ज्या दोन मुली आहेत त्या मुलीचे पालनकर्ते आहेत, त्याचे वडील आहेत, याचा आधार घेऊन त्यांनी बेटी बचाव या आंदोलनाला ज्या पद्धतीने पुढे नेलं, मला असं वाटतं की हे अतिशय चाणाक्षपणाचं आपल्या पंतप्रधानांचं म्हणजे काम आहे. परंतु केवळ असं सांगून होणार नाही, खऱ्या अर्थाने हे अभियान कसं चालेल, जसं दामले असं म्हणतात त्याप्रमाणे निळू दामले, त्याप्रमाणे ही महत्त्वाची गरज या क्षणाला वाटते. अगदी खरं. आणखी काही मुद्दे आपल्याला चर्चा करायची आहे त्याच्यात जे उपस्थित केले गेले मन की बातमध्ये, आणि अजूनही काही भोगामधल्या नागरिकांच्या ज्यांनी मन की बात ऐकली त्यांच्याही प्रतिक्रिया घ्यायच्यात. ब्रेक घेऊन परत येऊ. फक्त ऐकून लोक